Take out your computer book. This is our first chapter. Chapter number 1, page number 6. Right? This is our page number 6. In our previous class, we study about data storage units. Right? We study about data storage units. What they are? Computer used all their data in zeros and ones. कंप्यूटर अपने सारे डेटा को किस में कन्वर्ट कर देता है? जीरोस और वंस में कन्वर्ट कर देता है. ओके, अब दिस विल कॉल बाइनरी डिजिट्स. जीरोस और वंस को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट्स. एंड द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज. ओके, now we going to study about units. डेटा की यूनिट्स क्या होती हैं वो हम आज पढ़ेंगे. The data stored in a computer is measured in bytes. कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसे हम किससे मेजर करते हैं? बाइट से. लाइक weight we measure in kilograms. Right? Height we measure in centimeter or meter. Right? Therefore, इसी तरह से हम लोग कंप्यूटर को डेटा को किससे मेजर करते हैं? बाइट्स में. ओके, a bit is a smallest unit of computer memory. बिट जो है वो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है. 1 बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. 1 बाइट क्या होता है? ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. दैट मीन्स 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट. हाउ मेनी बाइट? 1 बाइट. राइट? अ बाइट इज डिनोटेड बाय लेटर बी. बाइट को हम किससे डिनोट करते हैं? लेटर बी से, कैपिटल बी से. ओके, लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू मेजर कंप्यूटर मेमोरी. और भी बहुत सी यूनिट्स जो कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करने में यूज होती हैं. वी स्टडी अबाउट दैट. व्हाट दे आर? मेमोरी यूनिट्स. लुक एट दिस टेबल. इस टेबल पे देखिए. इस टेबल में बताया हुआ है 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट. 8 बिट्स और 1 बाइट इक्वल होते हैं. 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट. 1024 बाइट्स को हम 1 किलोबाइट भी बोल सकते हैं. 1024 KB इज 1 मेगाबाइट. मेगाबाइट we denote with MB, denoted by MB. मेगाबाइट को हम MB भी लिख सकते हैं. 1024 MB equal to 1 gigabyte and gigabyte denoted by GB. gigabyte को हम GB से डिनोट करेंगे. 1024 GB equal to 1 terabyte. टेराबाइट को हम we denoted terabyte TB. टेराबाइट को हम TB में भी डिनोट कर सकते हैं. 1024 TB equal to 1 petabyte. 1024 टेराबाइट में 1 petabyte इक्वल टू होते हैं. और पीटाबाइट को हम we can denote by PB. Okay, 1024 PB equal to 1 hexabyte. What we call it? 1 hexabyte. Exabyte is EB. EB. Okay, we can denote by EB. 1024 EB equal to 1 zettabyte. What we call it? 1 zettabyte. Okay,
1024 ZB equal to 1 yottabyte. What we call it? 1 yottabyte. And yottabyte denoted by YB. Yottabyte denoted by YB. yottabyte को हम YB लिखकर भी डिनोट कर सकते हैं. Another fact is nibble is another unit of memory that was used in early microprocessors and pocket calculators. It is also known as half byte. That means 1 nibble equal to 4 bytes because 1 byte equal to 8 bytes. Nibble जो है वो भी एक यूनिट है मेमोरी की, जो कि पहले जो माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे उनमें यूज की जाती थी, और या फिर पॉकेट कैलकुलेटर में भी यूज किया जाता है. ओके, इट इज नॉन एज हाफ बाइट. इसको हम हाफ बाइट के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्या है हमारे पास 1 निबल में 4 बीट्स होती हैं और 8 बीट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है. तो दैट मीन्स it is the half of the 1 byte. That's why we known as half byte. Okay. Now, types of computer memory. What is the computer memory? Computer memory, it is help to store all the data, right? And store and recollecting the data. It will help to store and recollect the data, right? Computer memory can be classified into the following 2 types. Computer की memory को 2 types में classified किया गया है, means उनको बांटा गया है. First is internal memory and second is external memory. First is internal memory or second is external memory, right? Look at this chart. Computer memory has 2. Computer memory has 2 memories, 2 types of memories, right? One is internal memory and second is external memory. Okay? Internal memory, we call it primary memory 2. हम इसे primary memory भी कहते हैं. And external memory, we call it secondary memory. We call also it secondary memory. External memory को हम क्या कहते हैं? Secondary memory. Okay? Now, what is the internal memory? We will study about internal memory. Internal memory is the main or primary memory of a computer system. Internal memory जो है वो क्या है? कंप्यूटर मेमोरी की मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी भी है. It is an inbuilt location in a computer where data, instructions and information are stored. ये क्या होती है? इनबिल्ट होती है कंप्यूटर में, जहाँ की डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं. ठीक है, ये वहीं पर लोकेटेड होती है. दैट इज वी कॉल इंटरनल मेमोरी. ओके, कंप्यूटर कैन एक्सेस डेटा एंड प्रोग्राम्स डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनल मेमोरी. दैट इज व्हाई it is the fastest of all types of computer memory. A computer can access data. कंप्यूटर क्या कर सकता है? डेटा को एक्सेस कर सकता है, प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली फ्रॉम इट्स इंटरनल मेमोरी. उसके अंदर इंटरनल मेमोरी में अगर हमने कोई डेटा या प्रोग्राम को स्टोर किया है तो वह उसे वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है. दैट्स व्हाई इट इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. तो ये दूसरी कंप्यूटर मेमोरी से क्या होती है? फास्ट होती है, तेज होती है. However, it too has a limitations that it comes with limited storage capacity. इसकी एक लिमिट होती है
क्या लिमिटेशंस के साथ होती है कि इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, राइट? इट हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि हम उसमें बहुत सारा स्टोरेज नहीं कर सकते, जितनी उसकी लिमिट है उतना ही स्टोरेज कर सकते हैं, ओके? इंटरनल मेमोरी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स। इंटरनल मेमोरी को भी हमने टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, ओके? वी कैन क्लासिफाई द इंटरनल मेमोरी in two types, right? Look at the chart. One is random access memory and second is read only memory, okay? One is random access memory that we call RAM. What we call it? We call it RAM, okay? And the second one is read only memory. We call it ROM. We can call it ROM, okay? Read and only memory, we call it ROM, and random access memory, we call it RAM, okay? Internal memory is classified in two types, right? Now we study about RAM. What is RAM? RAM is random access memory, okay? This memory temporarily stores data, instructions and information until the computer is in operation. Means कंप्यूटर जब काम कर रहा है तब कंप्यूटर का यह मेमोरी कंप्यूटर के डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को टेम्परली क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है। All the data stored in this memory will be lost when the computer will be off. Okay? Is turned off means जब मेमोरी का जब हम इस पे काम कर रहे हैं तो यह डेटा स्टोर हो सकता है, और अगर हमने डेटा को सेव नहीं किया है और लाइट्स ऑफ हो गई या कंप्यूटर ऑफ हो गया किसी भी रीजन से, तो हम ये डेटा को लॉस कर सकते हैं, मीन्स खो सकते हैं, ओके? नाउ दिस पेज इज कंप्लीटेड. आई एम गोइंग टू शेयर अनदर पेज. Okay, this is our next page. As we read कि कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो क्या होता है? डेटा हमारा डिलीट हो जाता है. That is why it is called volatile memory. That is why it is called volatile memory. इसको हम क्या कहते हैं? Volatile memory कहते हैं. This part of computer memory contains both readable and writable data. इसमें क्या होता है? रीडेबल और राइटेबल डेटा दोनों होता है, यानी कि इसमें जो डेटा हम सेव करते हैं उसे हम रीड भी कर सकते हैं, और इफ वी वांट टू चेंज द डेटा वी कैन चेंज द डेटा. ओके, इट मीन्स users can read information from it and can also write, store data or instruction on it. As I told you कि इसमें यूजर्स क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन या डेटा को रीड कर सकते हैं और साथ ही साथ उसे उस पर कोई चीज राइट करनी है तो दे कैन राइट ऑल्सो. ओके, दिस मेमोरी इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसे क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी. सिंस
CPU can randomly access any storage location in this memory. CPU भी इसमें रैंडम एक्सेस में कोई भी स्टोरेज पे लोकेशन में हो सकता है. ओके Okay students, today's lecture we end here.